To this is your front page, landing page. Make it judicial. What is that? Justice with this real estate here. It looks good, but only thing is, अगर आप देखोगे सेल्स ओवर टाइम और सेल्स बाय सिटी में जो गैप है एंड देन सेल्स बाय सिटी और पाई चार्ट में जो गैप है, डू यू फील बोथ द गैप्स आर इक्वल? Look at the graph, No, sales over time no, and sales by city, and then look it's at not sales by equal. city. Not equal, no? So this is again one aspect of padding, which we say. So all the graphs horizontally or vertically should be equally aligned, equally spaced. Okay. Getting? Hmm. तो एक ग्राफ आपको और घुसानी होगी इसमें. ओके, फर्स्ट कार्ड इज गुड. या सर, सो मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि इसी में फिर बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा ना. गैप इक्वल होना चाहिए, दैट इज ओके. नहीं होगा भाई. आप अगर दो यू कैन इंक्रीज द पेज साइज ऑफ आवर बीआई, बट तो जो डिफॉल्ट पेज आती है 16:9. ओके, 16:9 में you can easily adjust 4 visuals and top on the top cards. I'm just telling you, take one of the visual like pie chart below, and in the first row make only 2 visuals. In the first row means the KPIs, all the No, KPIs. below the KPIs. Okay. So sales over time and sales by city, make it the second row, only 2 graphs, and below your sales over time will come pie chart, and below sales by city you can add one more graph. It will look perfect, like 4 visuals and KPIs. Because this slicer panel that you have, this will be like in and out. So whenever user requires, it will come out, and whenever user are done, it will hide in the with the bookmark. It will hide. So you will still have enough amount of space. Yeah, but if visuals are too much small, so we need to. You do into a 16:9 page size. Okay, you will see
In standard 16:9 also, you can easily adjust 4 visuals plus on the top cards. ओके सो मीन्स ये जब हाइड हो जाएंगे स्लाइसर, तो एट द टाइम जब ये बाहर आएंगे, जब उसके ऊपर होवर करेंगे, Hmm. तो फिर ये विजुअल्स के ऊपर आएंगे या फिर स्पेस रहेगा वहाँ पे? No, it will push no right hand side. It will push, and when as soon as you disable them, it will go again on the left hand side. Okay, so I did not use this type of functionality. That is why I don't know that. करेंगे. Yeah. And just Yeah. that's why this class is there. Okay. Yeah. So try to add one more graph on this page. Okay. Looks good. Second page, Muskan. So in the first page, I want to tell something. Go ahead. So this pie chart is showing only top 10 products that need to be updated. So again, top 10 के लिए आपको pie chart नहीं दिखानी है. Top 10 के लिए there is a separate graph. I think funnel chart is there. Okay. Okay, so funnel we will use instead of pie. And one more thing, I want to add more one point. Like sales over time. Line chart is okay. Yeah. Do we need to add any other chart? No, for sales over time, line chart is the perfect visual. Based on my understanding, it will. If we add any other chart, that will be good, looking good. What chart you will have? So why you want to duplicate? You already have a line chart. Why you want to duplicate it? So you want to replace the line chart. It will be like perfectly suit for that sales over time. So which For that, graph you want? Bar chart. Yeah. Bar chart you are already giving by sales by city. So apart from that part, any other chart will be okay for that? Like Which because one? you As per suggest, me, like see, you suggest. as per me, time one is good with the line chart. Sales by city is good with the bar chart. Okay. Pie chart again for top 10 if you have to show, then go with the funnel chart. And else donut chart, pie chart you can use for some other graph also. But sales by city, why are you guys not using the map? We We can have use to- map. I like in the previous like in the PPT I mentioned the same. It is in sheet 2. Suggested. Yeah, It is go in to sheet 2. Go to sheet 2. लिखा तो किसने, ये पता कैसे चलेगा क्या रिपोर्ट है ये? सब वो मैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना भूल गई इसमें. वाह वाह वाह, 2 दिन में करा क्या फिर? तो यार मेरे को बताओ, फिर आप रिपीट क्यों कर रहे हो ग्राफ को? When in the first page, don't make visual just to fill the page, blank page. कुछ मतलब होनी चाहिए ना. आपने शीट 1 पे जब सेल्स बाय सिटी दिखा दिया, फिर सेल्स बाय सिटी या सेल्स बाय कंट्री या सेल्स बाय सिटी ही लग रही है मुझे. तो सेल्स बाय सिटी फिर दूसरे पेज में दिखाने का क्या मतलब होता है? कोई समझाएगा मुझे? वैसे please explain. I think so. We decided these 3 visuals on this page, second page. See, on this page, 3 visual is good because this what is this heat map? Heat map is always a heat map, and map always takes a good amount of space. They need a bigger. So here, 3 graphs are good. My question is, why are you duplicating the graphs, man? पहला पेज पे आपने दिखा दिया सेल्स बाय सिटी. अगेन ऑन सेकंड पेज यू आर No, I am asking the team. Like ये top 10 तो हमने first पेज के लिए सोचे थे, और यहाँ पे हमने यही सोचे थे. नहीं ये थी. नहीं यार, टॉप 10 यही था. आपने कहा था पाई चार्ट हम कुछ डिफरेंट डालेंगे उसमें. Top उसी 10 के लिए में बोला था, पाई के लिए मैंने मैसेज किया था ग्रुप पे. यहाँ के लिए क्या बोला था? मैंने सिर्फ 2 रखे थे शायद यहाँ पे. नहीं, यहाँ पे 3 थे. ये टॉप 10 प्रोडक्ट्स ना यहाँ पर बार चार्ट में था. टॉप 10 का तो मैंने बाद में ग्रुप पे डाला था. चलो ठीक है.
रेवेन्यू बाय कैटेगरी। तो मैं क्या बोलता ना, आप लोग क्या करो, अभी अभी सुनो, लास्ट एक हम लोग जाते हैं। मैं समझ गया कि वायर फ्रेम आपको बताना पड़ेगा कैसे होगा, ठीक है। शीट 1 आप देखो, आप शीट 1 पे जाना, तो आपके पास टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट वाली केपीआईज है, हम्म ठीक है। तो एक काम कर दो आप, 1 minute, टोटल 1 minute. Like Yogesh prepared some wire. Can we have a look on that? yeah, just let me complete this part, then we'll go to Yogesh one, okay? Okay. तो अभी आप लोग कैसा करो ना कि जैसे आपको टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, ऑर्डर और एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ओके। तो पहला ग्राफ ठीक है, सेल्स ओवर टाइम लाइन ग्राफ, ओके। देन यू कैन शो टोटल कॉस्ट बाय सिटी। तो क्योंकि आपका एक सेल्स का केपीआई से हो गया, then you can show another graph, total cost by city or total cost by overtime or total cost by profit, जो भी है। Again you can show total orders by category, which or total revenue by category. So first page में try to have say different measures like by revenue, by sales, by category, by order value. Second page make it to revenue, only revenue. So revenue detail, उसमें क्या होगा आपका, revenue by city, revenue by year, revenue by category, okay, like that your graphs will come, revenue by product. Third page again आपका cost का आ जाएगा, again तो cost same graphs but measure change हो जाएगी आपकी। So instead of revenue you will get cost, बाकी dimension table आपके same रहेंगे। Again on the profit, fourth page on the profit, make it profit. So total profit by category, total. So your dimensions will be same, only measures will change. Like this, try to create a wireframe. Any doubt? सन्नाटो क्यों है भाई? चलो मुस्कान, इसमें स्लाइसर तो डाले ही नहीं पेज नंबर 3 और 4 में। ये टाइम इंटेलिजेंस है ना, तो इसमें स्लाइसर आएंगे क्या? मैंने डेट वाला मना किया था, बाकी तो आएंगे। पेज 3 में हाँ, तो मैं ऐड कर दूंगी फिर अभी। और ये लास्ट पेज जो है, रॉ डेटा में तो आएंगे ना स्लाइसर, तो रॉ डेटा में तो चाहिए स्लाइसर। मतलब चारों शीट में स्लाइसर आएंगे। हाँ, इसमें डेट वाला नहीं आएगा, बस इस वाले में। ओके, राइट उज्जवल सर? नहीं, इसमें आएगा, लेकिन मैं बताऊंगा, उसके लिए कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का भी, we'll learn that part. बट ठीक है, दिस शीट 3 आप लोगों ने यूज करा है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, दैट इज रियली गुड। WTD क्या है? वीक टू डेट। वीक टू डेट। वीक टू डेट वर्सेस लास्ट ईयर, क्या कंपैरिजन कर रहे हो यार आप लोग? वीक टू डेट एंड वीक टू डेट लास्ट ईयर। अच्छा, तो वीक टू डेट मुझे लगा पूरा लास्ट ईयर का कंपैरिजन कर रहे हो। नहीं, नो नो। ओके, सो वीक टू डेट वर्सेस करंट ईयर वर्सेस वीक टू डेट लास्ट ईयर। यस यस। ठीक, उतना ग्रैनुलर लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड इज MTD, QTD एंड YTD, बस उतना कर दो, ठीक है। YTD लास्ट ईयर, YTD करंट ईयर, QTD लास्ट ईयर, QTD करंट ईयर, okay, like that you can do. Okay, this is good. ठीक है, good. Okay, तो आगे समझ लेना, like okay, this wireframe we can take and we can start building the report. बट आगे से अगर आपको wireframe बनानी है, if you want to create report, तो जितने भी KPIs हैं आपके पास, measure value, like अभी आपके पास revenue हो गया, cost हो गया, sales हो गया, ठीक है। So line first page, summary page पे keep the like visualization utilizing revenue, cost, everything, तो एक दो ग्राफ लगा दो। Then page wise आपकी डिवाइड हो जाएगी। So second page only revenue, then dimension values. Third page only cost, same dimension values. Fourth page only sales, same dimension values, and then last detail page. समझ गए? I'm sorry, but can you repeat please? मैं क्या बोल रहा ना कि शीट 1 जैसे आपने बनाया ना अभी, तो शीट 1 पे अगर आप देखोगे तो आपके बहुत सारे KPIs हैं, कॉस्ट है, प्रॉफिट है, सेल्स है, ओके। तो इस पे क्या करोगे, फर्स्ट पेज में आपका KPI तो टॉप पे आ गया, उसके बाद यू कैन गिव सेल्स ओवर टाइम, व्हिच इज करेक्ट। देन यू कैन गिव कॉस्ट ओवर टाइम,
Okay. Okay. Then you can give total order over time. No, profit. After that order. No? प्रॉफिट भी दे सकते हो, ऑर्डर भी, बस जगह बचानी है ना. No, ठीक so है. we can use four graphs, right? So four means one is sales, cost, profit, and order. In this way एक we काम can. कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, वी विल हैव बटन्स ऑन द टॉप. ओके. Hmm. तो बटन्स पे क्या रहेंगे कि इफ यू क्लिक ऑन बटन लाइक सेल्स का Hmm. बटन, सो इट विल गिव यू सेल्स ओवर टाइम, सेल्स बाय, इस पे नहीं देंगे फिर. This is summary page, ना? समरी पेज. ओके. Hmm. सेकंड पेज में क्या हो जाएगा ना, सेकंड पेज में इट विल बी ओनली ऑफ सेल्स. तो आपके समझो 4 ग्राफ्स हैं, जैसे आपने 4 बार चार्ट बनाए. एक सेल्स बाय कैटेगरी, सेल्स बाय प्रोडक्ट, सेल्स ओवर टाइम, सेल्स बाय कंट्री. यू हैव 4 विजुअलाइजेशन. तो सेकंड पेज पे ओनली सेल्स डिटेल आएगा आपका. फिर जो थर्ड पेज आप बनाओगे, थर्ड पेज आपका सिर्फ कॉस्ट का रहेगा. सो इट विल बी सेम ग्राफ्स ऑफ द सेकंड पेज, बट वहां सेल्स हटा के आप कॉस्ट डाल दो. Cost down. फिर जो फोर्थ पेज होगी आपकी रेवेन्यू की होगी. तो सेम डायमेंशन, सेम ग्राफ्स, बस सेल्स हटा के वहां पे आप रेवेन्यू डाल दो. हो गया आपके 3 पेज. Yes. लास्ट पेज आपका डिटेल ड्रिल थ्रू पेज हो गया. No, so it is profit in order page. वही मैं Yeah, बोल but रहा for हूँ. wireframe that is sufficient, right? वही मैं बोल रहा हूँ, जितने आपके पास मेजर्स हैं, अगर आपको वायर फ्रेम बना के कस्टमर को दिखानी है तो यूटिलाइज दिस अप्रोच. Hmm. Okay, so you can show 2 to 3 pages. अगर वो कस्टमर को अच्छा लगा, and customer says like, okay, I want profit also, then you increase one more page of profit. But as a wireframe, अगर आपको पेजेस बनाने हैं तो go with this approach. Okay. Got it? Hmm. Rakesh, कोई And the doubt? time intelligence is not necessary. The table. Time intelligence is very necessary, boss. तो जैसे यहाँ पे आपने सेल्स ओवर टाइम दिखाया है ना, तो यू आर शोइंग लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर कंपैरिजन ओनली. Yes. ये तो एक टाइम इंटेलिजेंस ही है ना. Hmm. Yes. आई थिंक. Yes. Yes. अब यहीं पे आप क्या कर सकते हो ना, देखो जैसे आपका सेल्स ओवर टाइम है, तो यहाँ पे सेल्स ओवर टाइम के ऊपर यू कैन पुट 3 बटन्स, YTD, QTD, MTD. तो अगर किसी को YTD पे ट्रेंड देखनी है, so they will click on YTD button and graph will show on the year basis. अगर किसी को QTD पे देखनी है तो QTD पे बटन पे क्लिक करेगा and then this graph changes into a QTD format. No. So for that we have that range, date range, right? Date वाला जो है ना filter slicer, उससे हो जाएगा. नहीं बट डेट वाला स्लाइसर क्यों दोगे आप, मतलब उसके लिए कस्टमर को फिर हैव टू डू लॉट ऑफ फिल्टराइजेशन. आप रिपोर्ट सिंपल बनाना चाहते हो, जस्ट एट अ क्लिक ऑफ अ बटन. Hmm. ओके, विल डू दिस. जब हम रिपोर्ट बनाएंगे ना, देन आई विल टेल यू हाउ टू डू. ओके, डोंट वरी. Yes. राकेश, कोई डाउट? No, no, no. No. योगेश, आपको कोई डाउट? No. योगेश, ओके, नाउ कैन यू शेयर योर स्क्रीन? आप So ओपन दिखा दो. one thing, sales for sales and for revenue, we shall have different pages. एवरीथिंग, सेल्स, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट. Okay, sure. ग्राफ विल बी सेम, बट योर मेजर वैल्यू विल चेंज. डायमेंशन विल बी सेम. Hmm. You are you sharing? स्क्रीन शेयर कर रहे हो? You are on mute if you're talking. एक Yes, I can see. Can you go to second page? एक ग्राफ वाले पेज पे जाना है योगेश. फोर्थ पेज.
Clear revenue profit. This is exactly the same which you guys have built. Kind of same only. Yeah, good. Okay, good. What's this color filter? क्या color filter? अकॉर्डिंग डेटा वहाँ पे एक कलर का भी एक ऑप्शन दिया गया है, एक कॉलम रो बनी हुई है, उसके बिहाफ पे मैंने यहाँ पे एक कलर का डाला हुआ है। डेटा होगी उस तरह. Looks good. ठीक है. We'll finalize on. अच्छा wireframe हो गया ना. Let's do on the. हाँ मुस्कान आपकी क्या ट्रांसफॉर्मेशंस करा आप लोगों ने? कोई कुछ बोलो यार. डेटा ट्रांसफॉर्म हुआ आप लोगों का? वो जो डेट इशू इधर आ रही थी वो रिजॉल्व हुआ? हाँ सर वो हो गया कैसे करा? दिखाना मुस्कान. सर, वो यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर हुआ। लोकल यूज किया आप लोगों ने? हाँ मैंने कैसे मालूम चला? यूट्यूब पे? यूट्यूब पे भी देखा था और राकेश भैया ने भी मुझे कहा था कि लोकल यूज करके करना, एक्सीलेंट. तो वो हो गया था। सर वो CSV फाइल थी ना मेरी, मतलब वो एक्सेल वाला था, उसमें एरर था। जो सीक्वल से दिया ना उसमें तो ठीक है, हाँ हो गया है वो। हो गया ना. हाँ और उसका पैरामीटर्स पैरामीटर्स सर मैंने एक क्रिएट किया है और दिखाना, शेयर करना इस पे. हाँ सबने Just- करा? राकेश आपने करा पैरामीटर्स? हाँ मैंने किया. अच्छा ठीक है, मुस्कान के बाद आप दिखा देना. अभिषेक पिरामिडर का टास्क था क्या? वाह वाह, लिमिट पैरामीटर्स. हाँ आज आपने बोला भी कि करेंगे. पिरामिडर का कौन सा था राकेश जी? मैंने वीडियो भी शेयर करा था लास्ट में. वीडियो था। अच्छा वीडियो. हाँ अब मैंने वीडियो देख के ही किया है. हाँ वीडियो देख के मैंने भी किया है। समझा क्या ये बताओ पहले. मुस्कान जो भी शेयर कर रहा है, मुस्कान शेयर कर रहा है ना आप? एक यहाँ पे- सेकंड सर। हाँ, एक्सप्लेन मी आल्सो कि हाँ। समझा क्या. ओके मैं सर, अगर हमारे पास जैसे रो बहुत ज्यादा हो गई, जैसे बिलियंस में चली गई है, हाँ बट फिर वो उसका परफॉर्मेंस उसकी वजह से स्लो हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक फीचर है रो लिमिट कर, मतलब ये मैनेज पैरामीटर करके, तो हम उसका यूज करके मतलब रो काउंट को लिमिट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे 10 किया है, मैंने फर्स्ट सेल पे लगाया है, तो मुझे 10 रो डिस्प्ले हो रही है। हाँ हो रही है. वाह एक्सीलेंट. अभी आप जाना इस पे, क्लोज एंड अप्लाई करना. अभी पावर BI डेस्कटॉप पे जाओ एंड मैनेज पैरामीटर्स. ट्रांसफॉर्म डेटा में गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा, ड्रॉप डाउन, एडिट पैरामीटर। एडिट पैरामीटर्स. यहाँ पे 100 करना. नहीं पहले कैंसिल करो इसको. आप कैंसिल कर दो. आप कैंसिल. ब्रिंग वन टेबल रिपोर्ट एंड ब्रिंग वन कॉलम फ्रॉम फैक्ट सेल्स. टेबल विजुअल आओ. ब्रिंग वन टेबल विजुअल ठीक है, and bring one column from fact sales. ठीक है, सिटी की। As you guys can see, we have only 10 rows now. अभी मुस्कान जादू करेंगी. मुस्कान 100 करना आप. चलो अब हमारे पास 100 आ गए. ठीक है. नाउ आई विल टेल यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कहाँ पे ये यूज करते हैं. इस कॉल के बाद रिकॉर्डिंग सुन के आप लोग एक नोट्स बना लेना. और दिस क्वेश्चन इज कमिंग अ लॉट दीस डेज इन इंटरव्यूज. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि
सो होता क्या है कि जैसे मान लो आपको करीब 40 मिलियन या 1 बिलियन रोज के डेटा मिल गए टू डेवलप पावर बीआई रिपोर्ट, ओके। तो जब इतने ज्यादा रिकॉर्ड के डेटा, जैसे ही आप पावर यू आर गोइंग टू इंपोर्ट इन पावर क्वेरी, योर पावर बीआई विल हैंग, योर सिस्टम विल हैंग, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हो ना इतने विशाल रो को, योर योर सिस्टम कैपेसिटी इज नॉट दैट मच कि वो इट कैन टेक दैट मच ऑफ रोज, ओके। बट इन यू गाइज हैव टू डू अ डेवलपमेंट तो करना है ना भाई किसी तरह। तो आई गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, Yes. राकेश? Yes. yes yes सो एनीवे डेवलपमेंट तो करना है ना। मान लो कस्टमर बोलता है कि सी अगर आपके पास ह्यूज डेटा सेट है, सो कस्टमर, दिस इज अ क्वेश्चन दैट इंटरव्यू विल आस्क। Suppose you have a big data set. There are like 40 million records or 1 billion records. How you will do the development? तो इसका एक पहला आंसर है ऑब्वियस कि डायरेक्ट क्वेरी पे कर सकते हैं हम। सो विल इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट विल डू डायरेक्ट क्वेरी। सो डायरेक्ट क्वेरी में क्या होती है कि योर डेटा विल नॉट गेट लोडेड इनटू योर सिस्टम मेमोरी, इन मेमोरी कॉन्सेप्ट उसमें नहीं होता है। So whatever the transformations or whatever the DAX that you are running, it will be done on the database, not on your local. Correct? Correct. ठीक है, तो यू कैन यूज डायरेक्ट क्वेरी। अगर कस्टमर बोलता है नहीं मुझे डायरेक्ट क्वेरी, सो इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर। कस्टमर बोलता है नहीं मुझे डायरेक्ट क्वेरी नहीं चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेरी पे ऑलवेज परफॉर्मेंस इशू होता है। तो ही सेज लाइक ओके आई वांट इंपोर्ट ओनली। इंपोर्ट में क्या करेंगे? अगर इंपोर्ट में वी स्टार्ट पुलिंग 1 बिलियन रिकॉर्ड, आवर पावर बीआई विल फेल, हमें वो डेवलपमेंट करने को मिलेगा ही नहीं। So in that case, what you can do, we can utilize this manage parameters. अभी manage parameters में you can load 1,000 or 1 lakh rows. With those records, you can start building your reports. And once your report everything is built, you can publish this report into Power BI services. और अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो Power BI services में there is a place where you can go and remove this. You can make it 0. Instead of 10, whatever we are doing, you can make it 0. And after that, your entire data will be loaded there and your report will work fine. What 0 will do then? In that case, it will load entire data, right? It will load entire data. so after doing 0 we need to publish it. No, you publish it, okay? Okay, from So Power BI service. Yes, in Power BI services, when you will go into that semantic model settings, and there is a parameter option. So this parameter you can see there, it will be enabled. Okay, so how Muskan did here, like made 10 to 100, there also you can make it 10 to 0. So once you make it 0 and hit the manual refresh, all the data will be Will be loaded. loaded that. Hmm. Got it? Yes, yes. So, what is the limitations of using direct query? Limitation of direct query is like you cannot do data type change in Power BI. Okay, Yes, first. that is first. Second thing is your data load performance is slow compared to the import mode. Okay. और And कोई से टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन भी नहीं चलते हैं शायद कोई कोई से। और रिपोर्ट जैसा ये टैबुलर या मैट्रिक्स रिपोर्ट बना रहे हो तो इन डायरेक्ट मोड यू कैन जस्ट लोड ओनली 1 मिलियन रिकॉर्ड। अगर आपके पास 1 मिलियन रोज से ज्यादा आते हैं देन इट विल गिव यू एन एरर दैट वी कैन नॉट लोड मोर देन 1 मिलियन रिकॉर्ड्स इन डायरेक्ट क्वेरी मोड। Got it? So these three differences you have to tell. In direct query also we have limit of 1 million. In direct query only we have 1 million. Okay. Because it is like live data. That is Yes, it is like that. And so this best solution जो मतलब अगर ज्यादा बड़ा डेटा है, लार्ज डेटा है, बिग डेटा है, तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन वही है ये जो पैरामीटर वाला आपने बताया, ना कि डायरेक्ट क्वेरी। बेस्ट सॉल्यूशन है डायरेक्ट क्वेरी ऑलवेज।
तो अगर आप रियल वर्ल्ड सिनारियो में जाओगे ना, तो यू विल बी हैविंग अ प्रॉपर ETL टीम और लेक हाउस, डेटा लेक, सब कुछ बना. सो यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन Power BI. Okay, even the time intelligence function that we are talking last year, current year, that everything can be done at the database end. आपको बस drag and drop करनी है. You don't have to write a single DAX also. Okay. Okay, so in that scenario, pipeline, what? right, Ruzva? क्या क्या? Through data lake pipeline, right? Yeah, through Databricks. So Databricks पे होगा या Snowflake पे होगा, जो whatever database you guys are using, like SQL Server, for example. Mhm. The SQL Server पे all this DAX, whatever, like current year, last year, total revenue, total sales, ये सब formula we can write it in SQL Server database, and we can import it as a column, and then we can directly pull it in our report. So whatever the limitation that direct query gives, those limitations will not apply because we are not doing that thing. We are not doing data type change. We are not writing time intelligence function. Okay. So अगर data huge है, best approach is to go for direct query mode. In case, हाँ, क्या बोलो? बट 1 मिलियन आप बोल रहे हो, जैसे 40 मिलियन रोज है, तो फिर वहां पे तो यूज कर ही नहीं पाएंगे डायरेक्ट क्वेरी. नहीं 1 मिलियन, ऐसे मान लो 40 मिलियन. मैं क्या बोल रहा है कि जब आप रिपोर्ट बनाते हो ना डायरेक्ट क्वेरी से, तो ये जो कोई भी टेबल विजुअल जो होती है, टेबल विजुअल के अंदर 1 लाख रिकॉर्ड से 1 मिलियन रिकॉर्ड से ज्यादा नहीं आ सकते रोज. ओके, दिस विजुअल, इन दिस टेबल और मैट्रिक्स, इन सिर्फ इन दो की इशू के लिए होती है. अगर मान लो मेरे पास, तो वही कस्टमर को हम लोग बोलते हैं कि भाई आप फिल्टर लगाओ. अगर आपको ये इशू आ रही है, अगर मान लो जैसे मेरे पास 50 कंट्री के डेटा है, कस्टमर वांट्स टू सी ऑल 50 कंट्री, तो उसको हम बोलेंगे भाई तू एक कंट्री पे फिल्टर लगा ले, it will be less than 1 million record, and then you can export in Excel. In Excel you can combine them together. अब सब कुछ we cannot give everything ना, there is a two limitation. समझा? नॉट एग्जैक्टली. और किसी को कोई डाउट? मींस उसको ब्रेक डाउन कर दिया हमने, जैसे 50 कंट्री से 50 पार्ट्स में. हाँ, तो 50 कंट्रीज, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है. अगर मैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इन चारों को एक साथ देखता हूँ इन अ टेबल रिपोर्ट, टेबुलर विजुअल, so I am getting more than 1 million rows. वो नहीं डिस्प्ले होंगे. So more than 1 million, it will throw an error. So what we suggest to customer is you break down in different countries. So पहले इंडिया का निकालो डेटा, इंडिया का you go and export into Excel. ठीक है? ओके. उसके बाद you come back to Power BI, then you put USA का डेटा and again export to Excel. Like then you map can reducer. And then you can combine them together in Excel or CSV. Like map reducer. What was what? Correct, like map reduce, yes. But map reduce तो Python कोड लिख देंगे, यहाँ पे हमें मैनुअल करना होगा. हाँ, लेकिन concept तो same है. Concept same. Only thing that you have to remember is in direct query you cannot go above 1 million record if you are showing in a table report. अगर आपके पास बार चार्ट है, पाई चार्ट है, because that gives an aggregation data, उसमें ऐसा रोज नहीं आते हैं, so that will work fine. Only for table and metric visual this limit is there. Okay, so means this for this raw data. Raw data बोले तो मीन्स रॉ डेटा टेबल जो हमने बनाया लास्ट वाले पेज में, हाँ डिटेल, उसमें नहीं आएगा ना. हाँ, डिटेल टेबल. हाँ, तो उसमें हमें कोई डिफॉल्ट फिल्टर लगा के रखनी होगी. डिफॉल्ट मींस एट द सोर्स लेवल, राइट? नहीं एट द स्लाइसर जो आप लगाओगे उस पेज पे. ओके, स्लाइसर लगा सकते हो, करंट ईयर, करंट मंथ, ऐसा स्लाइसर लगा सकते हो. राइट. बट एक और चीज है, अगर उसमें 1 मिलियन से एक भी ऊपर जाता है तो फिर वो नहीं दिखाएगा ना. 1 मिलियन 1, वो एरर हो जाएगी. ओके, ठीक है, समझ गए ना आप? अगर इंटरव्यू में पूछता है कि how you will proceed, how will you design if your data size is huge, first approach you will say we will go with direct query mode. अगर इस कस्टमर से नहीं, मुझे डायरेक्ट क्वेरी मोड पे नहीं जाना, आई वांट इंपोर्ट ओनली, इन इंपोर्ट यू विल टेल दिस वन, ये जो क्वेरी पैरामीटर हमने बनाई.
कोई डाउट मुस्कान? नो सर। सर तो इंपोर्ट में भी ऐसा सेम होता है क्या? कुछ लिमिट होती है टेबल या मैट्रिक्स पर? नहीं, इंपोर्ट में लिमिट नहीं होती। अब इंपोर्ट में क्या होता है ना, आपके सिस्टम की लिमिट होती है। इंपोर्ट में जैसे मैंने आपको पढ़ाया होगा, तो मैंने बताया होगा कि डेटा जो है डेटाबेस से आपके सिस्टम में, आपके जो लोकल सिस्टम जिसपे आप, जैसे मान लो आपकी लेनोवो की लैपटॉप है, हम्म तो डेटा जो है डेटाबेस से उठ के आपके लेनोवो के सिस्टम के सीपीयू में कॉपी हो जाती है। हम्म अभी मान लो 1 बिलियन रिकॉर्ड है, तो 1 बिलियन रिकॉर्ड इजीली नहीं तो कम से कम 8-9 जीबी डेटा आपके सीपीयू की ले लेगी। हाँ ओके, अगर जब आपके सीपीयू की डेटा इतनी ले लेगी तो आपका सिस्टम ही स्लो हो जाएगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा, आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको चाहिए ऐसे बड़े बड़े जो सुपर कंप्यूटर्स आते हैं ना, 500 जीबी के रैम, 1000 जीबी के रैम, बट वो पॉसिबल नहीं है रियल वर्ल्ड में कि 1000 जीबी के रैम पे मैं काम करूं। हम्म उस केस में हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट में हम, क्योंकि हमें एक्चुअली रिपोर्ट डेवलपमेंट करनी है, हमें सैंपल डेटा चाहिए, हमें 2 लाइन का भी डेटा दे दो, विल स्टार्ट डूइंग द डेवलपमेंट, हमें सिर्फ रिपोर्ट्स बनाने हैं। ठीक तो है। इसीलिए हम 1000 या 2000 या 1 लाख, क्योंकि 1 लाख तक पावर बीआई ले सकती है, तो विल इंपोर्ट 1 लाख रोज। आफ्टर इंपोर्टिंग 1 लाख रोज विल स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पेजेस, विजुअलाइजेशन, टाइटल वाइटल सब बना दिया, और फिर सर्विसेज में जाके हम उसको पटक देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। अब सर्विसेज में जाके वी विल रिमूव दैट लिमिट। सर्विसेज में क्या होती है ना, सर्विसेज इज अ स्टैंडर्ड, वहां पे आपको जो रैम कैपेसिटी है इज ह्यूज। जो आपका जैसे मान लो 32 जीबी का रैम है, वहां पे हो सकता है 3000 जीबी का रैम हो, वहाँ के सीपीयू का प्रोसेसर ज्यादा हो, आपका i5 वो वहां पे हो सकता है i10 हो, या जो भी हो लेटेस्ट प्रोसेसर हो सर्वर पे, क्योंकि वो कंपनी का होता है, तो वहां पे प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होगी और वो डेटा ले सकता है अपना। समझे बात? Yeah. So I have faced this problem. Yeah, बोलो मुस्कान। मैं पूछ रही थी सर, पैरामीटर फिर पहले क्रिएट करें क्या, डेटा इंपोर्ट करने के पहले? नहीं, पहले डेटा नहीं, तो पहले जैसे आपने डेटा इंपोर्ट करा ना, तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाओ, आप हाँ। क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा, गो टू पावर क्वेरी। हम्म तो अगर आप जैसे यहाँ पे आपने जो सोर्स, ये सोर्स, तो जैसे आप इंपोर्ट करते हो ना टेबल, ओके, तो क्लिक ऑन सोर्स, डबल क्लिक ऑन द सोर्स गियर। ये एक्सेल से आ रही है या सीक्वल सर्वर से? ये वाली सीक्वल से थी। हाँ, डबल क्लिक करना ये गियर पे। तो जब भी आप इंपोर्ट, नहीं, हाँ, ये एडवांस ऑप्शन पे जाना, जैसे मान लो आपको, आपके पास फैक्ट सेल्स टेबल है जिसमें आपके 40 बिलियन रिकॉर्ड्स हैं या 1 बिलियन रिकॉर्ड है, तो आप यहाँ पे हमेशा क्वेरी लिख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिमिट 1000। ओके ओके। तो जब आप लिमिट 1000 यहाँ लिख दोगे ना, सो इट विल ब्रिंग ओनली 1000 रिकॉर्ड्स। लेकिन जब आप यहाँ पे लिमिट करते हो ना, तो देन इन पावर बीआई सर्विसेज यू विल नॉट गेट द ऑप्शन टू रिमूव दिस फिल्टर। ओके, हाँ ठीक है, समझ गई। आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे लिमिट करके डेटा लोड कर दो, उसके बाद आप पैरामीटर बना दो। पैरामीटर में फिर आप, अगर मान लो आपने 1000 लोड करा है, तो आप पैरामीटर में 100 कर दो। हाँ हाँ जब आपकी पैरामीटर में क्रिएट हो गई ना, तो फिर यहाँ पे आके आप वो सीक्वल पे लिमिट हटा दो। ओके ठीक। तो जब आप यहाँ से हटा दोगे, देन इट विल फिल्टर द डेटा एट द पावर क्वेरी लेवल। और उसके बाद, क्योंकि पावर क्वेरी व्हेन यू पब्लिश, इट विल give you the option to remove that parameter in your services, then you can remove from there. So this is the approach that you have to follow. ओके ओके। कोई डाउट किसी को? योगेश भैया बताइए। सीपीयू लिमिट वाली दिक्कत हुई थी मुझे एक बार लैपटॉप में, जैसे मोर देन कैपेसिटी डेटा था, इस वजह से। तो जैसे कई बार ये भी होता ना कि जैसे पावर बीआई सर्विस पे भी हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर ज्यादा डेटा है तो। पावर बीआई सर्विसेज पे आप कर सकते हो, बट वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि पावर बीआई रियल वर्ल्ड में जाओगे तो बहुत सारे लोग पावर बीआई सर्विसेज यूज करते रहेंगे।
पावर BI सर्विसेज आप अगर लोड करोगे, आपने हेवी डेटा लोड कर दिया और कहीं सर्विसेज डाउन हो गई, यू विल बिकम फेमस इन वन डे। ठीक है, सब लोकल पे ही करो। मतलब CEO आके पूछेगा कौन है वो बंदा जिसने मेरे पावर BI सर्विसेज को डाउन किया, मैं उसे अवार्ड दूंगा। उसमें वैसे भी बहुत सारी लिमिटेशन है डेवलपमेंट की, जैसे डेक्स तो अभी हो गया है ना उस पर पावर क्वेरी नहीं है ना, पावर क्वेरी नहीं है ना। नहीं वो भी है, पावर क्वेरी आई थिंक सो नहीं है। हाँ, डेटा मॉडल है सिर्फ। समझ गए ये इसका रियल टाइम सिनेरियो, रियल टाइम यूज। क्यों मैंने आपको बोला था ये पैरामीटर लिखने को। योगेश, आपको कोई डाउट? नो, क्लियर। तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल 4 ऑफ यू, इसके बाद तुरंत सिस्टम पे खाना पीना खा के तुरंत सिस्टम पे बैठ के रिकॉर्डिंग देख लेना, जो भी मैंने बताया है। ट्राई टू मेक इट इन योर ओन वर्ड्स, लिख लो। और ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू आई एम गिविंग यू, अगर आप 10 इंटरव्यू देते हो तो 9 इंटरव्यू में ये वाली क्वेश्चन जरूर पूछेंगे ये लोग कि हाउ विल यू डू द डेवलपमेंट इफ यू हैव अ लार्ज चंक ऑफ डेटा। राकेश, मुस्कान, आप लोगों ने इंटरव्यू दिया है, आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत मिला होगा। हाँ सर, पूछा था। हाँ, तो ये दिस इज द आंसर। इसको अगर लिख लोगे आज अच्छे से, मेमोराइज कर लेना, एंड नोबडी विल रिजेक्ट यू बेस्ड ऑन दिस आंसर। तो 2 अप्रोच मैंने सिखाया। एक डायरेक्ट क्वेरी, फर्स्ट ऑलवेज गो विद डायरेक्ट क्वेरी अप्रोच। अगर इंटरव्यूअर बोलता है नहीं मुझे डायरेक्ट क्वेरी नहीं करना, मुझे इंपोर्ट से ही करना है, तो ये इंपोर्ट वाली मेथड बता दो, ये पैरामीटर वाला। ठीक है? यस, ओके। कनेक्शन चेंज करना सीखा? किसी ने करा? नहीं, इसका तो हमने नहीं किया है। उसका नहीं किया है। किसी ने नहीं करा ना? सर मुस्कान की है शायद। मैंने यहाँ मुस्कान आवाज फिर से मैंने ठीक इसमें यहाँ से एग्जाम से बात माइक कर दिया था। मुस्कान माइक टेस्टिंग 1 2 4 1 2 4। अभी ठीक है? हाँ, सर मैंने क्या किया था, मैंने ना ये अपना जहाँ पे सीक्वल से लोड किया था ना, मैंने वहां का पाथ कॉपी करके किया था उसमें। तो क्या ये वाला डेटा आ रही है ना, मुझे ये जानना है। देख लेते हैं सर एक बार, मैं दिखाती हूँ। राकेश, आपने क्यों नहीं करा भाई ये? आई नो द रीजन। या योगेश, आपने क्यों नहीं करा कौन सा? ये कनेक्शन चेंज? भाई ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन है, समझे? आपसे पूछ देगा कल को कि भाई मान लो I have a report which is having 10 pages, 100 of visualization. That report is running on Snowflake database. But today I want to shift it to Databricks. How will you change the connection? Will you go and create a new report again? इसलिए मैंने बोला था ना, ये सब रिसर्च करो, अप्लाई करो। क्या करा? चलो ये पेंडिंग रह गया। हाँ, तो बैकलॉग में कर रहा आप। हाँ मुस्कान, बताइए। सर मैंने बस ये सोचा था कि मैंने ना इस पे ये डेट डेट है इस हाँ। कर दिया सीक्वल नहीं, क्योंकि डेटा सोर्स सेटिंग से मुझे आया नहीं। रिसर्च करो भाई। अगर जरूरत पड़े तो सबको एक साथ बैठो, चारों लोग, और रिसर्च करो। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके,
ठीक है You guys discuss it, okay? ओके अच्छा, अभी तो मीटिंग खत्म हो जाएगी 5 मिनट में, फिर विल ज्वाइन अगेन. नेक्स्ट करेंगे. रिलेशनशिप बनाया किसी ने? आप कुछ मैंने बताने वाले सिर्फ थे क्या डेटा वायर लोड फ्रेम का? किए और लिमिट किए. वायर फ्रेम तो ठीक है, वायर फ्रेम पे बात करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले वी ओके. विल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किसी ने कुछ करा है? राकेश, आपने कुछ करा? मैंने सारा डेटा को लोड किया है और लिमिट किया है, बस यही किया था मैंने. रिलेशनशिप अभी बिल्ड मैंने नहीं किया. क्यों भाई? आई सेड और लाइक डेटा क्लीन किया है. क्या करा है राकेश? शेयर करना. लेट्स सी व्हाट डेटा क्लीनिंग यू हैव डन. स्क्रीन दिख रही है? एक्चुअली क्या है कि मैंने 2 टेबल पे लिमिट किया था. एक फैक्ट पे ले लिया था और एक डायमेंशन पे ले लिया था. तो लाइक फैक्ट वाला. दैट इज गुड, बट देखो डायमेंशन टेबल हमेशा छोटी रहेगी. ओके, so always try to limit your fact table. Understood? स्टोर. हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन क्या लेकिन करा मैं भाई? डेटा क्लीन किया है मैंने सिर्फ, और लोड क्या किया है कोई clean? I can ट्रांसफॉर्मेशन. I can see transformation means data cleaning. I can see applied steps. Applied step में तो पहले दो तो ऐसे ही आ जाते हैं खुद से. Remove top rows, remove columns. ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है भाई. तो इस डेटा में ऑलरेडी ज्यादातर क्लीन है, तो उसमें सिर्फ जो डेटा को चाहिए था हटाना हो उसको. कुछ तो करो. ओके, click on that city ID column. Click on city ID column. Second column, just click there. I already clicked. Go on dim employee. dim employee table पे क्लिक करना. You see this column employee column is there. आप इसको स्प्लिट कर सकते हो ना. You can just learn like first name, last name, middle name. You can guys can split that kind of transformation you can do. Go little right. यहाँ पे देखो photo column is null. So it is, if it is entire null, remove it the nulls, replace null values. Valid from क्या है ये सब कॉलम रिमूव करना है ना. I kept it because the value is at 0, so I thought like it तो will जीरो be जीरो something. क्या है? जीरो इज नथिंग यार. और मैंने क्या बोला था? जो भी आपकी वायर फ्रेम में है आपको वही कॉलम्स लाने हैं ना. तो स्टार्ट डूइंग ट्रांसफॉर्मेशंस. ओके. Okay, I will remove these columns. फॉर नो, आप देखो फॉर ईच टेबल गाइस ट्राई टू डू एटलीस्ट 5 to 6 ट्रांसफॉर्मेशंस. खोजो क्या जब तक यू विल नॉट डू रिसर्च, यू विल नॉट फाइंड आउट कि try to replace zero, try to replace blank values, try to replace null values, data type change करो. कहीं पे अगर आपको दिखता है numbers है और data type is text, make it to numbers. fact table में जैसे भी blank values है, employee table में first name last name column split करो. अगर column split है तो उसको merge करके देखो. There are so many transformations that you can do. Yeah, I अभी जैसे observe one thing ठीक है बोलो. नहीं बोलो भाई. You can continue. You can हाँ, continue. You can continue. हाँ, No. अभी बोलो. तुम डेट पे जाना. अभी से आपको डिम डेट है, यहाँ मंथ है ना.
day number, go on a little right. First thing ना, dim date table उड़ा दो. Okay, all you guys, just delete the dim date for column from your table, and you guys have to write a DAX to create dim date. Abhishek, Muskan मालूम है ना? I have given you code to create a dim date table. हाँ यस सर. हाँ, तो dim date आप लोग defaultly नहीं लाओगे. You guys are going to create a dim date table inside Power BI inside using DAX. ठीक है राकेश, आप मुस्कान या अभिषेक से कोड ले लेना. That is a calendar table code, और हम DAX लिख के we will create a dim date column table. Okay. So we'll try to look at, we'll try to do more and more transformations. It will be good. It will be good for you guys. Okay, try to make some if else condition. कुछ भी ऐसा लगा दो कि if facts like if sales is greater than 5,000, market as good. If sales is greater, if sales is in negative, market is bad. ऐसा कुछ, you have that on top. Add column option is there. You can create a custom column. You can create selected column. Use करो यार वो सबको transform को. We are not going another 3 to 4 5 classes. We are not going to do visualization. सबको यही लगता है कि Power BI is just about visualization. हमने रिपोर्ट बना, डेटा लोड करा और चलो ग्राफ बनाते हैं. नहीं, Power BI उससे भी बहुत कुछ है. So another 3-4 classes we are just working on transformations. कोई doubt? नो सर. No doubt from my side. हाँ, आप लोग इंडिविजुअली काम करो. नहीं होता तो बैठ के मिल के डिसाइड क्या ट्रांसफॉर्मेशन इस टेबल पे कर सकते हैं. कैन यू क्लिक ऑन टॉप ऐड कॉलम ऑप्शन राकेश? ऊपर में ऐड कॉलम ऑप्शन है. One second. यूर कंडीशनल कॉलम है, इंडेक्स कॉलम है, इनवोक कस्टम फंक्शन, कस्टम कॉलम, ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं यार आप लोग. तो मेरे को हाँ ठीक है. ओके, तो ऐसा कॉलम्स बनाओ यार. फैक्ट टेबल में, डिम टेबल में, डिम कस्टमर टेबल में कुछ तो बनाओ. थिंक ऑफ दिस.